من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتم کی درس وات اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہند یم زن فضائل تو مناقب چھ اور تمن متعلق کیا عقید گژھِ آسن سون تات متعلق ووت اس پتم کی درس پرن. بہرحال آز چہ آیات مبارکہ یم زن میں تہ برونٹھ تلاوت کر یم چھ امی سلسلچ کڑی یعنی امن آیاتن مز تہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہند کی فضائل اور تمن ہند کی صفات بیان آمت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یمن ہند زن معجزاتن ہند پتمس درسس مز ذکر آو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کم کم معجزہ ٲسۍ تمن عطا کرمت کہ وہ اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو بالکل شفا یاب کرتے تھے یا ان کو بینا کرتے تھے. اتھے پٹھن یہ زن کوڑی یا برس کا مریض تھا جب وہ ان کے اوپر دست مبارک پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے. اور اسی طرح ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزہ یہ بھی عطا کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ بتاتے تھے یا اس بات کے بارے میں بھی خبر دیتے تھے کہ وہ کل یا وہ کیا گھر سے کھا کر آئے ہیں اور گھر میں کیا وہ بچا کر رکھے ہوئے ہیں. تو امیک تہ پوڑ اسے اور آخر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم واقعی مومن ہو تو ان باتوں میں ان معجزوں میں آپ کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. تو انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ اور تورات کی ہدایت جو کہ مجھ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں وہ مصدقا لما بین یدی اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی تمام انبیاء علیہ السلام ہند یہ طریق رودمت کہ اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ان کتابوں کو جھٹلایا نہیں ہے بلکہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کی تھی. جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تو انہوں نے تورات کی بھی انجیل کی بھی اور سابقہ جو بھی آسمانی کتابیں تھے ان کی تصدیق کی. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو یمو تہ کر تصدیق کمچ تورات کیونکہ ان سے پہلے کون سی کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. یہود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اے یہود کہ ہم تو آپ کی کتاب جو تورات ہے اس کی بھی ہم تصدیق کرتے ہیں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اچھا ایک تو تصدیق ہو گئی. دوسرا اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اللہ کے حکم سے تمہارے لیے حلال کر دوں. یعنی بنی اسرائیل یم زن چھ یہود یم زن چھ تمو اس پنی یم زن اپنی کج روی کی وجہ سے انہوں نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام کی تھیں. جیسے انہوں نے یہ زن اونٹ اور گائے کی چربی اپنے اوپر حرام کی تھی. اتھے پٹھن اللہ تبارک و تعالیٰ تھی امن کی چیز حرام کرمت اپنی کج روی کی وجہ سے. اصحاب سبت یہ زن یا سبت کا جو دن تھا اس کے دن وہ کوئی تجارت یا کوئی بھائی نہیں کر سکتے تھے تکیاز تمو اس پانے مسلط کرمت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام کر دی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
वनन कि एक तो मैं तौरात की भी तस्दीक करता हूँ, दूसरा जो आपके ऊपर कुछ चीज़ें बिल्कुल हराम की थी अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं उनमें तखफीफ करने के लिए आया हूँ। बहुत तुमन मज आमुत क्या करने खतर, तखफीफ करने खतर। बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, वो चीज़ें जो कि आपके ऊपर हराम की गई थी, मैं उन्हें उहिल्ला हलाल करने के लिए आया हूँ। मगर याद गई थाउन, हमने पीछे भी पढ़ा है कि नबीस तन आसन हलाल तो हरामुक इख्तियार क्या। तो यहाँ पर क्यों कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने मैं वो चीज़ आपके लिए हलाल करने आया हूँ जो आपके ऊपर हराम थी। ये असल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद से हलाल करने नहीं आए थे, बल्कि ये किसकी हुक्म से आए थे, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से ये हलाल करने आए थे, मगर चूंकि इन्हीं की वजह से ये ऐलान हो गया तो इन्होंने इसकी निस्बत किसकी तरफ कर दी, अपनी तरफ कर दी। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, इसलिए आप अल्लाह का तकवा इख्तियार किए रखो, व अतीऊन और मेरी इताअत करो। याद गई थाउन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता इस आयत का है, युस्त का नबी युवंज, जब भी नबी आता है किसी कौम की तरफ, तिकाज यम जन साबिका नबी अस वो अपने अपनी कौमों की तरफ थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ थे, इथे पट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये भी बनी इसराइल की तरफ थे। इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम वो तो कौमी हूद की तरफ थे। इसी तरह कौमी नूह उनकी तरफ नूह अलैहिस्सलाम आए थे। आखिर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लेकिन वो पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। मगर युस नबी आओ तम दिस अकै तालीम, या कौम अब्दुल्लाह वत्तकूहु व अतीऊन, ए कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आओ, हजरत इब्राहिम आओ, हजरत नूह आओ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, इन तमाम अंबिया का तज़किरा कुरान पाक में सूरह हूद में है। हर किसी की दावत बस इनके लिए यही अल्फाज हैं, या कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, व अतीऊन, और किसकी इताअत करो, मेरी इताअत करो। गो प्रेथ का नबी युजन आसन इसकी दावत होती है अल्लाह की इबादत की दावत, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की दावत और उस नबी की इताअत। तो यहां पर भी कहा गया फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। गो जब भी रसूल आएगा या जब भी कोई नबी आएगा तो एक तो अल्लाह की इबादत की तालीम वो करेगा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की बात कहेगा वो, और दूसरा वो क्या कहेगा, वाअतीऊन, यानी मेरी इताअत कर, यानी जो शरीयत लेकर मैं आया हूं, जो अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, उसकी इताअत करनी होगी। इसीलिए इस आयत से पता चलता है कि वो ग्रोह जो कहता है कि सिर्फ कुरान ही हिदायत के लिए जरूरी है, उनके लिए भी ये तंबीह है। यहां कहा गया फत्तकुल्लाह व अतीऊन, यानी रसूल की इताअत के बगैर हिदायत का रास्ता वो बिल्कुल भी इंसान नहीं पा सकता है। इसलिए हिदायत के लिए जहां अल्लाह की किताब की भी जरूरत है, वहां अल्लाह के रसूल का उसवा भी जरूरी है। तवज कुरान पाक में आमद लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर न रसूल का उसवा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उसवा नहीं होता, तब तो सिर्फ कहा जाता कि हमने आपके लिए किताब नाजिल की है, इसी की इत्तिबा करो। मगर इत्तिबा करे किमसुज, किताब की अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जहां अल्लाह की इताअत होगी वहां रसूल की भी इताअत होगी। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू, अब किन के जरिए ऐलान किया जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए ऐलान किया जा रहा है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है, फअबुदू, बस उसी की इबादत करो। यानी ये असल में उन नसारा और यहूद के उस अकीदे पर ज़रब लगाई गई है जिनका अकीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करनी चाहिए, जिनका अकीदा था कि मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की माबूदत या अल्लाह की इबादत में वो भी शरीक है। तुमन आवन इन्नल्लाह रब्बी, बेशक अल्लाह मेरा रब है। ऐलान किसके जरिए किया जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जरिए शिवन ऐलान करना, ए ईसा मन मनसा इन्नल्लाह रब्बी, बेशक अल्लाह युजन वो मेरा रब है, वह रब्बुकुम, और वही आपका भी रब है, फअबुदू, इसलिए सिर्फ किसकी इबादत करो, सिर्फ उसी की इबादत करो। युजन अकीदे तस्लीस, अकीदे तस्लीस गो यहूद और नसारा में अकीदे तस्लीस था। अकीदे तस्लीस माने वो तीन खुदाओं को रब मानते थे, एक अल्लाह को भी रब मानते थे, दूसरा वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी रबूबियत में उनका शरीक समझते थे, और हजरत मरियम को भी वो रबूबियत में शरीक समझते थे। इसी तरह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी वो अल्लाह का बेटा तस्वुर करते थे। तो इन तमाम अकीदों की
की नफी इस आयत में की गई, क्योंकि ऐलान कराया गया हजरत ईसा के जरिए से, जिसको वो अल्लाह का शरीक ठहराते थे। ए ईसा इनसे कह दीजिए इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू, बेशक अल्लाह मेरा रब भी है, व रब्बुकुम आपका भी रब है, फअबुदू इसलिए सिर्फ उसी की इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, और जान लो हादा सिरातुम मुस्तकीम सिर्फ यही सीधा रास्ता है, यानी यह योतन च कस बात सिद्ध बात, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की अगर इबादत करोगे तो फिर आप गुमराह हो जाओगे। मरियम अलैहिस्सलाम को उलूहियत में शरीक ठहराओगे तो गुमराह हो जाओगे। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत में शरीक ठहराओगे तो गुमराह हो जाओगे। बल्कि सीधा रास्ता क्या है? हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। वो कौन सा है? कि जब आप ऐलान करोगे और जब आप अपने अमल से ये साबित करोगे कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, सिर्फ अल्लाह मेरा रब है और अल्लाह ही तमाम कायनात का और तमाम लोगों का रब है। और ये बात भी आप जहन में रखिए, इंसान कुरान पाकन सारे खुद ज्यादा, बल्कि तमाम अंबिया ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? तौहीद पर दिया है। सारे खुद ज्यादा जोर आमद कत चीज पे दिन? तौहीद पे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है इन्नल्लाह यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन युश्रक बिही। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हर गुनाह को माफ कर सकता है, मगर शिर्क को माफ। इसलिए अगर का इंसान खबर कचा इबादत करे, अगर का इंसान खबर कचा रोज थाए, अगर का इंसान खबर कचा हज करे, मगर उसके दिल में शिर्क की बू आती हो या उसके अमाल से शिर्क की बू आती हो, ये अमाल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होंगे। ये अमल कैसे न खुदाए नजदीक काबिल कबूल, बल्कि हदीस में आता है, और बार बार हमने वो हदीस इस सूरह बकरा में भी पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला से दरबार में ये आख मुजाहिद अन्न, बहरहाल उसका जब फैसला होगा अल्लाह उसे कहेगा कि ए मेरे बंदे बताओ आपने क्या काम किया मेरे लिए। सुवन खुदाया जू ओसम दितमुत, यह जू आओ से कुर्बान कर चानी दीन खतर। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उसे कहेगा कज़्ज़बता, तूने झूठ बोला। क्या दपेस ये पन्नी जाय गुमान कि मे गई दुनिया में लुख जरी वन, मे गई दुनिया में लुख वन शहीद, लोगों ने तो आपको वो कहा दुनिया में, अब मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है ये अमल खालिस अल्लाह के लिए, बल्कि उसने इस अमल में किसी चीज को या मखलूक को क्या किया था? शरीक किया था। तवे सखीस इथे पे वन, इथे पे नी आलमस वन। तो इन तमाम अहादीस से, इन तमाम मिसालों से पता चलता है कि अल्लाह के नजदीक सिर्फ वो अमल काबिल कबूल है जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाएगा, जिसमें शिर्क का कोई भी शाइबा नहीं होगा। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुम, अब ये आयत ये इंपॉर्टेंट, और बकर कोशिश की यह आयत कंप्लीट गई। फलम्मा अहस्स ईसा, पस जब ईसा अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया, अहस्सा द्रामुत हिस्स माने एहसास हो गया, जब ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इदराक हो गया, किस बात का? मिनहुमुल कुफ्रा, इन लोगों के कुफ्र का। यानी ये ईसा अलैहिस्सलाम यमन कमिच दावत हो, तौहीद दावत ब्रोट कर थो कि इबादत करी सिर्फ कम सज? खुदाई सज। मैं अल्लाह का कोई शरीक नहीं हूं, बल्कि सिर्फ इबादत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की। जब ये दावत रसूल ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने इन यहूद और नसारा यानी अहली किताब के सामने रखी, बनी इसराइल की कौम ये दावत हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम को जब एहसास हो गया कि ये कौम इस दावत को मानने वाली नहीं है, बल्कि यम काजरो कौम, ये तो इंतहाई हरदरम कौम है। तो जब इस बात का एहसास ईसा अलैहिस्सलाम को हो गया, उनके कुफ्र का एहसास हो गया, तो इसने अपने इन हवारियों से कहा क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, एवन पायमन बनी इसराइल की कौम लुकन दोपना क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा, यानी जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा। यदि कौम कज रवि अमिस ईसा अलैहिस्सलाम ब्रोट कुनत आय, ये मन ब्रोट के तौहीद दावत हो, लेकिन तौहीद की दावत को मानने वाला खास कोई इंसान नहीं था, ये अमिस फिक्र तौर। और जब इसको एहसास हो गया इनके कुफ्र का, इसकी तफसील में उलमा ने लिखा है कि जब उसे एहसास हो गया कि अब मुझे ये डर पे लग गए, यानी यमसा कहने में वही क्या कातल, क्योंकि इतनी शिद्दत से इनकी मुखालफत हो गई। और रिवायत में आता है बनी इसराइली कौम यजन, इन्होंने एक रकासा के कहने पर, ठीक है, रकासा कहते हैं नाचने वाली की कहने पर, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम कर दिया।
यानी बनी इसराइल की तम सातनस हुक्मरान वो एक रकासा के इश्क में मुब्तला हो गया। उस रकासा ने उससे मुतालबा किया कि तब आपकी आरज़ू पूरी करूंगा, तब आपकी निकाह में आऊंगी जब आप हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के सर को मेरे सामने पेश करोगे एक प्लेट में। बहरहाल इस ख्वाहिश को पूरा किया उस वक्त के हुक्मरान ने। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम सुन सर आव करने कलम, उनको शहीद किया गया। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कौम की बदबख्ती देखी, उन्हें पूरा अंदेशा हो गया, अंदाजा हो गया कि अब मेरे साथ भी यही हश्र होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने अपनी कौम से जो उनके बिल्कुल करीबी यम जन अम सिंद पैरोकार यम जन अम सिंद स्टूडेंट्स तो शागिर्द उनसे मुखातिब होकर कहा, क़ाला मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी नुसरत करेगा। अंसारी रामत क्या मुझ नुसरत मुझ नासिर मुझ, नासिर माने मदद करने वाला, अंसार माने यम जन नुसरत करने वाले मदद करने वाले। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके कहाँ आ गए, मदीने पाक, जो हिजरत करके आ गए उन्हें कहा जाता है मुहाजिर। जिन्होंने उनकी मदद की, जिन्होंने उनकी नुसरत की, उन्हें क्या कहते हैं, अंसार, मदद करने वाले। वही लफ्ज यहाँ पर भी आ गया। मदीने पाक के सहाबी तुमन क्या वन अंसारी सहाबी, ये इसी से लफ्ज निकला है। क़ाला मन अंसारी इलल्लाह, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा। अच्छा, अल्लाह की मदद करने वाली की खुदा क्या मदद करने की जरूरत, यहाँ कहा गया अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह की मदद मेरे साथ करेगा। असल में यह है कि अल्लाह के दीन की मदद कौन करेगा। कुरान पाकस में 20 जगह आमद आयतस में अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि कौन है जो मेरी मदद करेगा। मन अंसारी इलल्लाह आगे चलकर हम पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए लोगो अल्लाह के मददगार बनो। ये क्या है, यानी खुदा से मदद जरूरत, ये असल में क्या है, कूनू अंसार अल्लाह के बदले असल में है कूनू अंसार दीनिल्लाह, कि आप असल में अल्लाह के दीन के अंसार बन जाओ, मददगार बन जाओ। मगर अल्लाह को अपना दीन इतना महबूब है कि इस दीन के लफ्ज को ही महजूफ कर दिया और यहाँ लाया लफ्ज या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के अंसारी बन जाओ। तो यतन क्या आव हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वोन पन्ने निमन पैरोकारन, पन्ने निमन मुतबियन, दुमना कौन है जो मेरी मदद करेगा अल्लाह की दीन के लिए। क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियून ने क्या कहा, हम हैं अल्लाह के अंसार, यानी उस चीज से अल्लाह ताला से दीन में मदद करने खातिर। अब ये अंसार कितने थे, रिवायत में आता है, तफसीर में आता है कि 12 लोग थे। ये क्या लोग, ये 12 हवारी अमिस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके नाम भी तफसीर में आए हैं। शमूएल अकिस नाव, अकिस यहूदा नाव, बहरहाल इनके नाम भी आए हैं तफसीरों में। और एक का नाम था मुख्तलिफ नाव क़ालल हवारिन, हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम आपके मददगार बनेंगे अल्लाह के दीन के लिए। कितने हवारी थे, ये रिवायत में आता है ये 12 हवारी थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये एजाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जितने सहाबी रसूलुल्लाह के थे उतने किसी के भी मददगार या सहाबी नहीं। और कितने आला पाए के सहाबी थे वो हम खुद जानते हैं। अच्छा, क़ालल हवारियून, हवारी के मिशवन, ये हवारी लफ्ज द्रामत हूरिया मज, असली के मज हूर तिश अमी मज द्रामत लफ्ज। इसके लफ्जी माने है सफेद चिट्टा, ये मिसाल बिल्कुल साफ यूसन आज, वो आदमी जिसमें मुनाफिकत का दाग न हो, उसी के लिए लफ्ज आया है हवारी। और हूर तिश जनतस में जिमजन खातून आयसन, जिमजन हूर आयसन, वो इतनी सफेद होंगी कि उन पर कोई दाग नहीं होगा, इसलिए उनके लिए भी लफ्ज क्या आया है, हूर। हूरिया मुजरा, हूरिया माने सफेद, इसलिए इनके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया हवारियून, यानी वो लोग जो इतने मुखलिस थे कि उनमें मुनाफिकत का दाग या कोई धब्बा नहीं था। और आमतौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल होता है ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबियों के लिए, जो ये 12 लोग थे। तो इन हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार आपके लिए हैं। आमन्ना बिल्लाह, और ये अंसार ऐलान करते हैं आमन्ना बिल्लाह, हमने क्या किया, हमने ईमान लाया अल्लाह पर। वशहद, और ए ईसा अलैहिस्सलाम आप गवाही दीजिए बेअन्ना मुस्लिमून, कि हम मुस्लिम हैं, हम इताअत गुजार हैं। यानी यमोकुर पान गोर ऐलान आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। और फिर वशहद, ईसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि ए ईसा, ए नबी, हमारी गवाही दीजिएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। किस बात की गवाही, बेअन्ना मुस्लिमून, कि बेशक हम इताअत गुजार थे, हम मुस्लिम थे। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता,
अब इन्होंने दुआ की, ये कर क्या दुआ। और याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों की दुआएं बार बार कुरान में नकल की हैं, बार बार पथ कुन पढ़ कि यतन ति नेक बंद खुदा कह दुआ मंगि सो अल्लाह ताला कत मज कर नकल, वो कुरान में दर्ज है। ये किस लिए दर्ज हो गई, ये अम सब क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमें यह तरबियत करना चाहता कि मैंने नेक बंदन हमेशा आजिज़ी थी इनकिसारी, उन्हें अपने अमलों पर कोई गुरूर और घुमंड, बल्कि वो बार बार रुजू करते हैं किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, और वो अपनी नदामत का और अपनी आजिज़ी का और अपनी इनकिसारी का इजहार करते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हमने ईमान लाया आप पर, बिमा अनजलता, जो कुछ आपने नाजिल किया, वत्तबाना, और हमने इत्तिबा की, और रसूल, किसकी, रसूल की, फक्तुबना मा शाहिदीन, इसलिए हमें शहादत देने वालों में से लिख लीजिए, यानी हमारा शुमार उनमें से कीजिए। अब देखिए यम से अर्जी सान खुदायस दुआ कर, बारिला खुदाया अशिन कां ति गुमंड, अशिन कां ति क्या वन तकिय कमन पे पन्न अमलन पे, बल्कि हम आजिज़ी और इंकिसारी से के साथ आपसे दुआ मांगते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमने आप पर ईमान लाया और उस चीज़ पर ईमान लाया जो आपने नाजिल किया इस वक्त रसूल, और हम इत्तिबा करते हैं इस रसूल की, फक्तुबना मा शाहिदीन, इसलिए असलियत तो कम मज शाहिदों मज, यानी शहादत दिन वाले मज पन्नो नेक बंदो मज। अगर आप देखोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सहाबी, उनकी दुआ भी इसी सूरह आल इमरान में आखिर पर ऐसी ही दुआ नकल की गई है। रब्बना इन्नना आमन्ना रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ए अल्लाह, हमने मुनादी देने वाले को, आपके मुनादी को, ये जो ईमान की तरफ मुनादी देता था उसकी आवाज को हमने सुना। रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान, जो किसकी तरफ बुलाता था, ईमान की तरफ। रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिना फआमन्ना बि, तो उस वक्त भी वो क्या कहते हैं, हमने ईमान लाया। तो बिल्कुल ये सही दुआ यम हवारी ते मंगन कम सातनस, यम सातन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उमन वोन कांछा युस अल्लाह ताला सिन दीन खातिर में मदद करे। अब देखिए आखिरी बात आज दरस, यह हमारे लिए तरबियत के लिए है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या खतरा हो गया कि यम लोग करें इस पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया, और इससे पहले भी इन्होंने नबियों को कत्ल किया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अपने कौम की ये पूरी हकीकत अब वाज़ह होकर आ गई। अमिस तौर फिक्री की ये कौम यीसा बदबख्त कि ये मुझे भी सही सलामत नहीं छोड़ेंगे। तो इस वक्त इनको फिक्र किस बात की हो गई, यमन गया फिक्र पन्नी जानच नहीं, बल्कि उस वक्त इन्होंने क्या ऐलान किया, काला मन अंसारी ला, कांछा युस खुदा सिन दीन खातिर में मदद करे, यानी उस वक्त भी फिक्र किसकी है, अल्लाह के दीन की, अल्लाह की दावत को पहुंचाने की। तो दाई युजन आस, युस अल्लाह तबारक व तआला सिन दीन दावत दिवन आस, उस पर भी ये मराहिल आ सकते हैं। तमिस पे हकन ये मराहिल, उसको भी जान का खतरा हो सकता है, मगर नबियों का तरीका ये है, नबियों की सुन्नत ये है, और अल्लाह के नेक बंदों की सुन्नत ये है कि वो लोग उस वक्त अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा फिक्र उनको उस वक्त किस बात की होती है, अल्लाह के दीन की, कि यह अल्लाह ताला सुन दीन कैसे लुकन तान वातुन, यह अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचना चाहिए और अल्लाह का दीन दुनिया में गालिब होना चाहिए। बहरहाल ये एक नसीहत हमारे लिए है कि अस गस यमन हालातन मज कंप्रोमाइज करन वाले आसन के, बल्कि साई प्रेफरेंस गस आसी सारे को ज्यादा कोस सा गस आसन कोस ये क्या अल्लाह ताला सुन दीन। दयम तरबियत सानि खतर ये कि यम सातन अस ईमान अनो रिच कथ पे या अल्लाह ताला सुन दीनस पे, अब हमें अपने अमलों पर या अपने जो अमाल है तुम पे गस घुमंड तो गुरूर आसन, बल्कि आजिज़ी ते इनकिसारी सान गस तम सातन ते दुआ कर रोजन मंगन रोजन सिर्फ केमिस रब्बुल आलमीनस, क्योंकि हर वक्त दुआ युजन या रुजू किसकी तरफ होना चाहिए, अल्लाह की तरफ। इंसानस गस घुमंड तो तकबर आसन पन्न अमलन पे। कुछ नुकात इसमें और भी हैं, इंशाअल्लाह रहमान जिंदगानी अस पगह करो तुमन नुकातन हिज वजाहत। रब्बुल आलमीन मगो दुआ कि दिनस कुरान पर अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।